हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, ऐसे स्टोरी आपको कोई भी नहीं बताया होगा अब तक, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। क्योंकि ये स्टोरी है जो ब्रेन को ब्रेन को क्या करता है, ट्रेन करता है इंग्लिश बोलने के लिए। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए अगर इस तरह से आप सीखेंगे तो बहुत ही जल्द सीख जाएंगे, क्योंकि ये सब पेड क्लास में दी जाती है, वो भी इंडियन नहीं देंगे शायद। मैं खुद ही बाहर से कुछ कंटेंट ख़रीदा था जिसमें इस टेक्निक को बताया गया था। इस टेक्निक को मैं काफ़ी बार रिपीट किया हूँ, तब जा कर के मुझे फ्लुएंसी आई थी, मतलब बोलना शुरू किया था। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। राहुल बॉट अ न्यू कार। डिड राहुल बाय अ न्यू कार? यस, यस ऑफ कोर्स ही बॉट अ न्यू कार। डिड राहुल बाय एन ओल्ड कार? नो, Rahul didn't buy an old car. Rahul bought a new car. Did Rahul buy an old car or a new car? गाइस, आपको इसे हिंदी नहीं करना, केवल आपको सुनना है। आप सुनते रहिए, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ओके, एक से दो बार आप सुनिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। A new car. Rahul bought a new car. Who bought a new car? Rahul. Right. Rahul bought a new car. What did Rahul buy? What did Rahul buy? A new car. Rahul bought a new car. Was the car expensive or was the car cheap? Aha, it was expensive. It was expensive. Rahul bought a very expensive car. Did Rahul buy an expensive bicycle? No. No, he didn't. He didn't buy an expensive bicycle. What did he buy? What did he buy? He bought an expensive car. Was the car small? No. No, it wasn't small. He bought a huge car. Very, very big car. How big was the car? It was huge. It was huge. Was it a huge bicycle? No, no, it wasn't a huge bicycle. It was a huge car. Who bought the huge car? Rahul. Rahul bought the huge car. What color was the car? Was it yellow? No. What color was the car? Blue. It was blue. It was a huge blue fast car. While driving down the street, Rahul saw a girl on a bicycle. What did he see while driving down the street? He saw a girl on a bicycle while driving down the street. While driving down the street, did Rahul see a dog? No, no, he didn't. While driving down the street, Rahul saw a girl. While driving down the street, did Rahul see a girl in a car? No, no, she wasn't in a car. Not in a car. While driving down the street, Rahul saw a girl on a bicycle. When did Rahul see a girl on a bicycle? While driving down the street, right? While driving down the street, Rahul saw a girl on a bicycle. Who saw a girl on a bicycle while he was driving down the street? Rahul, right? Rahul saw a girl on a bicycle while he was driving down the street. Where was Rahul driving? Driving down the street. Down the street. Rahul was driving down the street. Where was the girl? On a bicycle, right? The girl was on a bicycle. So while driving down the street, Rahul saw a girl on a bicycle. She had long blonde hair and was beautiful. What did she look like? Look like means, was she ugly? Was she beautiful? Was her hair black? Brown? Look like means, how does she look? Her hair, her face. So what did she look like? Well, she had long blonde hair and she was beautiful. What did she look like? She had long blonde hair and she was beautiful. Did she look beautiful? Yes, she looked beautiful. Did she look ugly or did she look beautiful? She looked beautiful. Who looked beautiful? The girl, right? The girl on the bicycle looked beautiful.
Rahul yelled to her. What did he yell? He yelled, "What's up?" Who yelled, "What's up?" Rahul, Carlos yelled, "What's up?" Did the girl yell, "What's up?" No, the girl didn't yell, "What's up?" Rahul yelled, "What's up?" Who did Rahul yell to? The girl. Rahul yelled to the girl. Did Rahul yell to a boy? No, he didn't yell to a boy. Rahul yelled to a girl. Which girl did Rahul yell to? Which girl did Rahul yell to? The girl on the bicycle. Right, he yelled to the girl on a bicycle. What did he yell to the girl on a bicycle? He yelled, "What's up?" After he yelled, "What's up?" did the girl ignore him? Yes, she did. She ignored him. Who ignored Rahul? The girl. The girl on the bicycle. Did Rahul ignore her? No, Rahul didn't ignore her. Rahul yelled to her. She ignored him. Did she listen to Rahul? No, she didn't listen to Rahul. She ignored him. Did she look at Rahul? No, she didn't. She ignored him. Rahul yelled again. How's it going? What did he yell? How's it going? Did he yell how's it going to the girl or to his mother? Well, of course, he yelled how's it going to the girl. Did he yell how's it going or did he whisper how's it going? Whisper means talk very quietly. Opposite of yell. So we have yell and whisper. I'm whispering. Did Rahul whisper or did he yell how's it going? He yelled. Rahul yelled how's it going? He didn't whisper how's it going? He yelled how's it going? After he yelled how's it going, did the girl stop? No, she didn't. The girl didn't stop. The girl kept going. Did the girl keep going? Yes, the girl kept going. Did she continue going? Yes, she continued. Right, she kept going. Who kept going? The girl. The girl kept going. He yelled again, "Hey, why won't you talk to me? I want to go to dinner with you. I will take you to an expensive restaurant." Where did he want to take her? To an expensive restaurant. He wanted to take her to an expensive restaurant. Guys, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और भी मैं कंटिन्यू करूँगा। आपको कैसा लगता है आप मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ अभी रहा होगा क्योंकि मैं खुद ही इसको क्रिएट कर रहा था और अच्छे से मैं क्रिएट करूँगा आपके लिए ताकि और भी बेहतर वीडियो बन सके। ओके, आइए अब कुछ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, जैसे अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। पहला टॉपिक है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ होना, मतलब कि आप स्वस्थ नहीं हैं उस जगह पे अंडर द वेदर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे फीलिंग अनवेल और नॉट इन योर बेस्ट हेल्थ, मतलब आप अपने अच्छे हेल्थ में नहीं हैं उस जगह पे अंडर द वेदर को यूज़ करिए। मेरी बीमारी के कारण मैं ठीक नहीं हूँ। ड्यू टू माई इलनेस आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ड्यू टू माई इलनेस आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। वह बुखार से जूझ रही है, वह पिछले 2 दिनों से बीमार रही है। ओके, शी इज़ स्ट्रगलिंग विद अ फीवर। शी इज़ बीन अंडर द वेदर फॉर द लास्ट 2 डेज़। मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं हूँ, शायद मैं बीमार हूँ। आई हैवन बीन वेल फॉर अ फ्यू डेज़, परहैप्स आई एम अंडर द वेदर। उसका पेट खराब है, वह आज ठीक से नहीं खा सकता। हिज स्टमक इज़ अपसेट। He can't eat properly today. He's under the weather. All I can say is that. All I can say is that. मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं। ओके, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। All I can say is that he is a good boy. वह इतना कह सकता है कि तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। All he can say is that you may pass in the exam. मैं बस इतना कह सकता हूँ तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए।
ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड स्टडी राइट नाउ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें बड़े लोग को इज्जत करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्डर पर्सन। गाइज इसी तरीके से 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसमें आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश में अगर आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ते होंगे, ओके, जो कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं उस भाषा को तो पढ़ते होंगे, राइट। उस वे में भी आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर में, जो ई बुक है उसमें उसी वे में लिखा गया है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ओके। और तो और यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रक्चर्स बताई गई है वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है, ओके। तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट, ऑल आई नो इज़ दैट, मैं बस इतना जानता हूँ कि, ऑल आई नो इज़ दैट प्लस सेंटेंस, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ऑल आई नो इज़ दैट यू शुडंट गो फ्रॉम हेयर, यू शुडंट गो फ्रॉम हेयर, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर होगा। ऑल आई नो इज़ दैट यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, ऑल आई नो इज़ दैट यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। ऑल आई नो इज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड विद यू, वह बस इतना जानती है कि तुम एक इंजीनियर हो, उसे तो पता ही नहीं कि तुम एक डॉक्टर भी हो। ऑल शी नोज इज़ दैट यू आर एन इंजीनियर, शी इवन डजंट नो दैट यू आर अ डॉक्टर टू। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, एज़ यूजुअल प्लस सेंटेंस, आप हमेशा की तरह बेईमान हो। एज़ यूजुअल यू आर डिसऑनेस्ट, मैं हमेशा की तरह आपको प्यार करता हूँ। एज़ यूजुअल आई लव यू, मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ। एज़ यूजुअल आई एम ओके, तुम हमेशा की तरह राजी हो। एज़ यूजुअल यू अग्री। वेदर और, चाहे हो या ना हो, वह आएगा चाहे बर्फ़ हो या बारिश हो। ही विल कम वेदर इट्स स्नोइंग और रेनिंग, वह सिनेमा देखने जाएगा चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी। ही विल गो टू द सिनेमा वेदर द मूवी इज़ गुड और बैड, उसने तय किया कि वह जाएगा चाहे मौसम ठीक हो या ख़राब। ही डिसाइडेड ही वुड गो वेदर द वेदर इज़ गुड और बैड। मेनली, मुख्य रूप से या फिर खासकर, मुख्य रूप से वह फल खाता है। मेनली ही ईट्स फ्रूट्स, वह फिल्में देखने के लिए मुख्य रूप से अपने दोस्तों के साथ हैं। दे मेनली हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स टू वॉच मूवीज़, मैं खेलने के लिए मुख्य रूप से क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई मेनली प्रेफर क्रिकेट फॉर प्लेइंग, यहाँ पे प्रेफर एज ए वर्ड मतलब कि वर्ब यूज़ किया गया है, एज ए वर्ब, ओके। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मतलब ज़्यादातर, ओके। नॉट टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ जनरली ट्रू और एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, उस जगह पे हम बाय एंड लार्ज मतलब कि ज़्यादातर को सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे समान रूप से वे टीम काफ़ी मजबूत है। बाय एंड लार्ज द टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, समान रूप से मतलब ज़्यादातर वे इस समस्या के लिए एक ही दिशा में सोचते हैं। बाय एंड लार्ज दे थिंक इन द सेम डायरेक्शन अबाउट दिस इशू, समान रूप से हिंदी में पढ़ना मुश्किल हो सकता है। बाय एंड लार्ज इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड इन हिंदी, यह फिल्म समान रूप से लोगों को हंसाती है। बाय एंड लार्ज दिस मूवी मेक्स पीपल लाफ, उसका व्यवहार समान रूप से बेहद अच्छा होता है। बाय एंड लार्ज हिज बिहेवियर इज़ एक्सेप्शनली गुड,